करते हैं। अच्छा, मेरी आवाज आप सब तक सही तरीके से आ रही है? ये मैंने पूछा ही नहीं आपसे। बिल्कुल साफ आ रही है, बिल्कुल बढ़िया आ रही है सर। जी, सॉरी, थैंक यू। सो मेरा ये कहने का मतलब था कि जैसे जैसे जो समय आगे बढ़ रहा है, तो कहाँ हम लोग काई स्क्वायर और एनोवा और ये सब चीजें भी अपने थीसिस के समय हाथ से कैलकुलेट करते थे, कैलकुलेटर से बैठकर उनकी सबकी वैल्यूज निकाल के थीसिस में लिखते थे। आगे कुछ कुछ ऑटोमेशन बढ़ा और ऑटोमेशन की बदौलत हम लोगों ने एक्सेल को यूज करना शुरू किया सबसे पहले, और एक्सेल के बाद SPSS मिल गया। आप में से बहुत सारे लोग SPSS को अच्छी तरीके से जानते भी होंगे। और उसके बाद वी स्टार्टेड यूजिंग एमोस आल्सो फॉर SEM purposes, and then all of a sudden we got these new tools also, open source tools, particularly in which R and Python, these are also becoming very popular these days. So that is something where most of the researchers, the new age researchers you can say, they are very competent. But unfortunately, the missing part is, why are we using a particular tool? Is it required in my research? And we do not understand the meaning of various numerical values which are coming out of that analysis. And for all those purpose, what we do that we take the reference of some previous research paper कि वहां उसने इतनी वैल्यू पर इसको सिग्निफिकेंट माना है तो हमने भी मान लिया, वहां उन्होंने इतना सैंपल लिया है तो हमने भी ले लिया, वहां उस रिसर्च पेपर में किसी फलाने ऑथर ने इस चीज को इस तरीके से मानकर इसको एक्सेप्ट कर लिया तो हमने भी इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल सिग्निफिकेंस of those things. We are going ahead with the data which we are obtaining from our black box. So all the tools I put as a black box. You will input some data, you will get some output data, and for that output data you again take some references that because of these past references you are either accepting, you are rejecting, you are considering it significant, you are considering it insignificant, etc. So ये तो रही हमारी डाटा की बात और एनालिसिस की जो आज की तारीख में रिसर्च हो रही है। लेकिन हमारा जो इस पर्टिकुलर वर्कशॉप का जो उद्देश्य है, that is more related to our instrument, because if instrument is not correct, you will not be able to have a good collection of data, and you will not be able to have a proper meaning of your output. So that is the point which I want to discuss in this, and since we will be interacting tomorrow also with you, so I want to understand your various problems. Today we want to keep it more interactive, and we want to understand your problems because it is almost the 8th or 9th day probably of this 10-day workshop, and you are already exposed to various processes of developing an instrument. And as I was informed today morning by Professor Rashmi ji, that earlier speakers have also given you very good insights about developing the instruments, and you have also developed the instruments, etc. There are some issues related to statistical tools application for checking the reliability and validities of those instruments. So we will like to take advantage of these two sessions for practically removing those problems, practically solving those problems, and if we can come up with problems in today's session, so practically we can find solution in tomorrow's session. Maybe I can open some of the data sets and I can practically solve you that how to use statistical tools for solving this similar kind of scenario, because I may not be having your data right now, so I cannot apply my tools on your data, but I will be using
almost similar type of data sets so that your problems can be resolved. So that will be my, you can say, endeavor in these two sessions. So today we want to understand your problems, and tomorrow we will like to resolve the issues related to all those things which you will give to me today as homework. So reliability, validity, you have already discussed with the professors of JNU and professors of other university, Bangalore, Reva University professor also gave you some very good inputs. So I understand that the concept of reliability and validity are clear in your mind, that what is the meaning of reliability, what is the meaning of validity. I know that in psychology, there are some instruments which are developed by your senior professors, and these instruments are part of like booklets, small booklets, and any new researcher who is starting to learn these things, they can use those instruments without thinking any if and but. So that is the kind of instruments which one should use, one should develop in his or her PhD thesis at least, so that any MA student, any MCOM student, if he or she is doing work in the similar kind of area, wants to measure the similar constructs, your instrument can directly be used by them. So it's like जैसे आप ये मान लीजिए कि जैसे मुझे अपना वेट मेजर करना है, अगर मुझे अपना वेट मेजर करना है तो उसके लिए क्या आ गया इसमें, सो मुझे अपना वेट अगर मेजर करना है तो उसके लिए मैं एक वेइंग मशीन यूज करूंगा, और वेइंग मशीन जो है वेट देना चाहिए उसको क्योंकि वो वेइंग मशीन है। लेकिन अगर वो वेइंग मशीन, आई रिक्वेस्ट आवर पार्टिसिपेंट्स, I don't know about the settings we have in this Zoom meeting, that don't scribble on this notepad, because it unnecessarily disturbs everybody. Please do not scribble anything on the notepad. तो हमारा जो वेइंग मशीन है, वो वेइंग मशीन अगर मेरा वेट मेजर कर रहा है तो वो अपना पर्पस फुलफिल कर रहा है। लेकिन अगर मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हो रहा हूं और वो वेइंग मशीन मेरा वेट मेजर करने की जगह वो लेट्स से मेरी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहा है, उसका जो सरफेस है वो टेम्परेचर सेंसिटिव लगा दिया है, और वो वेट मेजर करने की जगह वो मेरी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना शुरू कर दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि हमारा जो डिजायर्ड पर्पस है उस इंस्ट्रूमेंट से, तो वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी कम्स इनटू द पिक्चर, कि जिस इंस्ट्रूमेंट को मैं यूज कर रहा हूं वो इंस्ट्रूमेंट वही चीज मेजर कर रहा है जो मैं मेजर करना चाहता हूं, दैट मींस द वैलिडिटी। तो अगर एक वेइंग मशीन में यूज कर रहा हूं तो वो वेइंग मशीन मेरा वेट ही मेजर कर रही है, वो मेरी बॉडी का टेम्परेचर मेजर नहीं कर रही है। मैं खड़ा तो होता हूँ वेट मेजर करने के लिए, लेकिन वो बता देती है टेम्परेचर की आपका टेम्परेचर जो है 99 डिग्री है, 98.4 डिग्री है, 100 डिग्री है। तो जो उसका पर्पस है वो पर्पस अचीव नहीं हो रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ वैलिडिटी। और रिलायबिलिटी का मतलब है कि वो वेट ही मेजर कर रही है। लेकिन अब वेट मेजर करने में भी दो इशू हो सकते हैं, कि वो मेरा करेक्ट वेट मेजर कर रही है या वो मेरा करेक्ट वेट मेजर नहीं कर रही है। हो सकता है कि उसका जो कैलिब्रेशन है वो प्रॉपर ना हुआ हो, और उसके कैलिब्रेशन में मान लीजिए वो मशीन बनाने वाला ऐसा व्यक्ति है कोई जो हम सबको खुश करना चाहता है, और वो खुश करना चाहता है इसका मतलब है कि जो मेरा वेट है वो मेरे वेट से 10 किलो कुछ कम दिखाई दे। उसमें कुछ ऐसी मशीन मैंने बनाई है कि ऑटोमेटिकली जितना मैं अगर 70 केजी का हूं तो उस पे खड़ा होकर मेरे को वेट अपना 60 केजी दिखाई देता है, जिससे कि आई फील गुड इनसाइड कि भाई मैं तो काफी वेट कॉन्शियस आदमी हूँ और मेरा वेट सही तरीके से मेंटेन्ड है। तो वो बार बार जब भी मैं खड़ा होऊंगा तो मेरा वेट 10 किलो कम दिखाएगी। संजय जी अगर खड़े होंगे तो संजय जी का वेट भी वो 10 किलो कम दिखाएगी, और इसी तरीके से हमारे बीच में आरती जी हैं, अनीता जी हैं, किसी का भी वेट जो है वो 10 किलो कम ही दिखाएगी। तो वो दिखाएगी तो वेट ही, तो वो उस तरीके से तो वो वैलिड हो गया।
कि वो वेट ही दिखा रही है, लेकिन वो वेट जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ दिखा रही है, तो हम उसको कहेंगे रिलायबल, बट वो जो है अपना उसका जो पर्पस है वो पर्पस सही से फुलफिल नहीं कर रही है, वो वैलिड नहीं है, क्योंकि उसमें आपका वेट जो है वो सही नहीं आ रहा है, वो 10 किलो कम आ रहा है या किसी और वजह से 10 किलो ज्यादा आ रहा है, वो तो कैलिब्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो आपका इंस्ट्रूमेंट जो है, जो आप चाह रहे हैं वही मेजर कर रहा है, अगर आप इसको इस तरीके से देखें। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक सेकंड, कि आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं वो जरूर अब तैयार रखें। जैसे सपोज कीजिए कोई शूटिंग रेंज है, और इस शूटिंग रेंज में हम लोग जो हैं वो शूटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक ऐसी सिचुएशन आपको दिखा रहा हूं जहां पर ये मेरे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो यहां पर आ रहे हैं। ये जो रेड डॉट्स हैं, these are representing my responses. Now take another situation. So these are the two situations which are there, and you can see that in one case the output is valid, but it is not reliable. And in the second case, it is reliable but not valid. Therefore, if we want to have a scale which is to be developed for our research purpose, it has to be like this, where you have reliable and valid, both these things. So you are measuring things which are to be measured, and at the same time you are having the consistency, you are having the accuracy also. So that is the meaning in this case of because if you see our previous examples, here we are having these red dots are coming at a particular location. At a particular location, all the red dots are coming. If you see my spotlight, so all these red dots are coming at a particular location. So where these red dots are coming with a lot of accuracy, consistent, लेकिन वो हमारा जो टारगेट है उससे काफी अलग है, उससे ऑफसेट है। तो यहाँ पे इसको कहूंगा कि ये रिलायबल तो है, क्योंकि बार बार आपको एक ही रिजल्ट आ रहा है, लेकिन वो रिजल्ट जो है वो आपका वैलिड नहीं है, क्योंकि वो किसी और जगह जाकर आपको एक्यूरेसी दे रहा है। जो हमारा पहला केस है, जो ये डायग्राम बनाया है, जो अभी आप स्पॉटलाइट में देख रहे होंगे, तो यहाँ आपको देखिए कि बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं,
जो काफी फैले हुए हैं, लेकिन वो सब इस सेंटर पॉइंट जो है उसके चारों तरफ बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। तो यू आर नॉट गेटिंग द कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स। उनका जो स्प्रेड है वो बहुत वाइड है, इसलिए कभी कुछ रिस्पॉन्स आ जाता है, कभी कुछ रिस्पॉन्स आ जाता है, और आपको एक कंसिस्टेंसी नहीं मिल पा रही है। therefore we say that it is not reliable. So in the next figure, if you see, in this figure we are getting the response which are consistent also and which are coming around the target value, around the target area. So therefore this particular diagram explains the concept of reliability and validity both, and that is what we want to see in our instrument, that our instrument should have both these things, reliability as well as validity. Now when we are having this particular situation, reliability and validity clear in our mind, and I hope I did not say anything new. आपको ये जो बातें हैं जो मैं अभी बताया इस डायग्राम के माध्यम से, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर हैं, आप इससे काफी आगे अपने कोर्स में वैसे ही बढ़ चुके हैं। लेकिन हर स्पीकर को जब बोलना शुरू करना होता है तो एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने की आवश्यकता होती है। तो वो कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने के लिए मैंने ये थोड़ा सा रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को जिस तरीके से मैं समझता हूँ वो आपको बताने की कोशिश की कि हम इस तरीके से इसको मानते हैं कि रिलायबिलिटी एक तरीके से इट इज ए डिग्री और टू मेजर ऑफ ए कंस्ट्रेंट दैट हाउ मच इट इज डिपेंडेबल। एंड इसका मतलब है कि अगर हम एक ही कंस्ट्रक्ट को अनेकों बार मेजर करें तो हमें लगभग हर बार एक ही जैसा रिजल्ट आना चाहिए। तो जो आप अगर पिछली बार वाले डायग्राम में देखें, डायग्राम नंबर 2 में, ये डायग्राम नंबर 1 हो गया ऊपर वाला, ये डायग्राम नंबर 2 हो गया नीचे वाला, तो यहाँ देखें कि हम बार बार अलग अलग लोगों का वेट ले रहे हैं और वो वेट जो है वो लगभग एक ही जगह पर आ रहा है सबका। तो ये इसका मीनिंग है कि आप का ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक रिलायबल है क्योंकि ये हर बार एक ही जैसी आउटपुट दे रहा है। अब वो आउटपुट जो है वो लेंथ है या वो वेट है या वो आपका टेम्परेचर है, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, बट इट इज गिविंग दिस सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट एवरी टाइम। सो रिलायबिलिटी के बारे में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कंसिस्टेंसी, कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना कंसिस्टेंट है और वो हर बार एक ही जैसी वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले वेइंग मशीन के बारे में बताया था कि वो वेइंग मशीन अगर आपने 5 किलो 10 किलो इधर उधर ऑफसेट कर रखी है तो वो हो सकता है कि उसमें कंसिस्टेंसी तो हो बट एक्यूरेसी ना हो, और इसीलिए आप देखेंगे कि एक ही आदमी को अगर अलग अलग लैब में उसका कोई आप ब्लड सैंपल टेस्ट करवाएं या अलग अलग मशीन से आप ब्लड प्रेशर चेक करें तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट यू विल हैव डिफरेंट रीडिंग्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि आपको ये नहीं, एक ही इंस्ट्रूमेंट में अगर आप बार बार यूज कर रहे हैं एक ही आदमी के लिए तो वो एक ही जैसा रिजल्ट दिखाना चाहिए। इसका अभिप्राय रिलायबिलिटी का ये होता है। अब रिलायबिलिटी का जो सोशल साइंस में जो प्रयोग है वो ये है कि हम जिस चीज को मेजर करना चाहते हैं उस चीज में थोड़ा सा हम सब्जेक्टिविटी को एलिमिनेट करना चाहते हैं और उसको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं। यही साइंस का सिद्धांत है। साइंस और ह्यूमैनिटीज इन दो चीजों में सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जब आप एक ही चीज को बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, आर यू गेटिंग द सेम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स और नॉट, सेम टाइप ऑफ आउटपुट और नॉट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस।
कि हम कुछ चीज पर अगर मैं बार बार एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो आई शुड गेट दी सेम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। जबकि आप ह्यूमैनिटीज में देखें तो वही चीज जो है, एक ही भाव किसी आदमी को गुस्सा दिला सकता है और किसी दूसरा आदमी को काफी न्यूट्रल रख सकता है। तो जो कि साइंस में उसकी गुंजाइश नहीं है। अगर हम सब लोग NO2 के एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वो सबको ही हंसा देगी NO2 जो है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ साइंस, दैट यू हैव सेम काइंड ऑफ आउटपुट फॉर एवरी इनपुट। दिस इज द मीनिंग ऑफ साइंस। नाउ इस चीज को किस तरीके से साइंटिफिकली चेक किया जाए और उसके लिए हम क्या प्रोसीजर अपनाते हैं, वो हम सबके इंटरेस्ट का विषय है कि अपने इंस्ट्रूमेंट्स की रिलायबिलिटी को चेक करना और उसके लिए हम अपने क्या स्टैटिस्टिकल टूल लगाएं। तो वो देखने की बात है कितने तरीके की रिलायबिलिटी होती है। और जैसा मुझे मैडम ने कहा था कि थोड़ा सा हम लोगों को डिस्कस करके ये आपके जो स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज फॉर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, दैट आल्सो आई नीड टू फोकस ड्यूरिंग माय डिस्कशन। तो आई एम now expecting some questions from you, that what particular type of discussions we should carry forward, and what is your problems with respect to use of statistical tool for checking the reliability and validity, because you already have covered some ground. So I should now act as a kind of a ट्यूटोरियल क्लास। यू से दैट ट्यूटोरियल क्लास में जिसमें हम हैंड्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आई विल लाइक टू यूज आवर सेशंस like a tutorial class, or if we want to have some kind of general discussion about the use of instruments, and in particular with respect to reliability validity analysis, so that is now I request Professor Bhatt or Professor Pant to give opportunity to the candidates to ask questions. Yes sir, sure. कैंडिडेट्स हमारे यहाँ पर जो है मेरा मॉर्निंग में भी उनसे डिस्कशन हुआ था कि सर जब हमारे बीच में रहेंगे तो जहां पर भी उनको कंस्ट्रक्शन, सर एक्चुअली मैंने आपको शायद बताया भी था कि 6 ग्रुप इनके जो है फॉर्म हो चुके थे। जी। और इन लोगों ने जी 6 जो है जो टेस्ट स्केल है उस पर काम भी किया है, और आइटम राइटिंग, आइटम एनालिसिस, ये सारी चीजें इनकी हो चुकी हैं। और थोड़ा सा सर स्टैटिकल वाले पोर्शन में थोड़ा सा डाउट है, तो मेरा रिक्वेस्ट है पार्टिसिपेंट से कि प्लीज आप सर से बात कर सकते हैं इसमें, जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। संजय सर, एनी क्वेश्चन? Ma'am, are they faculty or they are PhD scholars? Yes sir. No sir, they are faculty and PhD scholar both. So I request if जी आप बताइए गीतिका मैम। PhD scholars are there, so they should ask questions, because they may be directly using these for their research, और faculty members भी पूछ सकते हैं। मतलब learning is lifelong activity, तो but थोड़ा हम अगर PhD scholars हमारे बीच में हैं तो we should try to hear them first. ओके, PhD स्कॉलर्स रिक्वेस्ट है मेरी उनसे, प्लीज आप क्वेश्चन रेज करिए जहां पर आपको विनीता है इसमें। सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये टी टेस्ट मैंने मैनुअली निकाला एंड एज वेल एज एक्सेल पे जो है, कैन यू हियर मी सर? सर बिल्कुल। तो मैंने मैनुअली निकाला है एंड एक्सेल, यूजिंग एक्सेल आल्सो आई हैव कैलकुलेटेड द टी टेस्ट, तो उनके रिजल्ट्स में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है सर? आप कहें तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं सर? हाँ, अगर आपके पास राइट्स है तो दिखा दीजिए। ओके सर, राइट्स नहीं है सर। मुझे स्टॉप करना पड़ेगा पहले। यस सर।
यस मैं कर रही थी ना स्क्रीन शेयर, तो मेरा हो नहीं रहा था। अब हो जाएगा। मैंने सर अपना क्लोज करेंगे तो आपका हो जाएगा जी। सर आप डाटा देखेंगे ना तो तभी पता लगेगा कि तब डाउट्स में तब। नहीं, now I have stopped sharing my screen, so you can हाँ, जब हम शेयर करेंगे ना तब वो डाटा रिप्रेजेंट होगा ना, तब पता लगेगा सर। या कर सकते हैं। So you can share your screen. Can you see my screen, sir? हाँ, अभी अब दिख रहा है जी जी। ओके, तो इसको थोड़ा मैं और बड़ा कर लेता हूँ। नहीं दिख रहा है सर, अच्छा दिख रहा है। इट्स ओके। गोइंग। तो सर ये हमने आइटम एनालिसिस कर रहे थे, तो उसमें ये एक पर्टिकुलर सिर्फ एक डायमेंशन के 8 आइटम्स है जो रेड में लिखे हुए हैं। दीज आर द आइटम्स, दीज 8 आर आइटम्स। यस। और जो वर्टिकली लिखे हुए सब्जेक्ट से 106 हैं। तो हमको जो है बताया गया था कि 27% टॉप एंड 27% जो बॉटम मोस्ट स्कोरर्स हैं उनका जो है एवरेज लेके और टी टेस्ट निकालना है। अगर वो सिग्निफिकेंट है तो देन यू कैन रिटेन द आइटम। दैट वाज द बैकग्राउंड सर। तो वो हमने किया। तो ये जो ग्रीन वाले हैं ये लोअर वाले हाफ के लोअर 27% है, और जो ब्लू वाले हैं ये अपर जो 27% है। तो जो ऊपर तो मैंने मैनुअली निकाला हुआ है, और नीचे जो ये आप ये वाला जो हाइलाइटेड वाला देख रहे हैं, this has been calculated through sorry not this one, ये वाला ये टी टेस्ट किया था एक्चुअली उससे, वो जो आपने 6 और लिखा हुआ था वैल्यूज। हाँ, तो ये this is the one sir I calculated through using this Excel। तो इसमें जैसे मैनुअली कैलकुलेट किया, उसमें जो है 8 डायमेंशन जो है सिग्निफिकेंट है, कैन बी रिटेन, और नॉट आइटम्स, ऑल 8 आइटम्स कैन बी रिटेन, क्योंकि वो हमें 1.96 एंड अबव चाहिए होता है। 1.96 एंड अबव चाहिए होता है। तो पर इसमें जब से किया यूजिंग दिस एक्सेल, तो इसमें जो है दो जो हाईलाइटेड है सर जो ब्राउन में, वो सिग्निफिकेंट नहीं आ रहे हैं। सो दो पॉसिबल रीजंस मुझे लग रहे हैं क्योंकि जब हम मैनुअली कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो वेरिएंस को भी डोंट अकाउंट फॉर, क्योंकि एक्सेल में जो है ऑप्शन होता है कि वो सेम वेरिएंस है इनका या वेरिएंस डिफरेंट है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो जो एरर वेरिएंस है वो भी जो है मैनुअली जब कैलकुलेट करते हैं तो वी डोंट अकाउंट फॉर, जो कि इसमें अकाउंट फॉर होती है। तो इसके अलावा कोई रीजन है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। नहीं, you see, that is the reason, but you need to check the calculation. You can do one thing, that these values are coming as a result of formula which is inbuilt into the Excel. Correct. But you can also apply the formula manually in the Excel also, and you can check, is it because of your manual error or is it because of inbuilt Excel formula? So that is ये जो ब्लू वाली जो है ना, ये एक्सेल से ही मैंने मैनुअली कैलकुलेट की, एक्सेल से ही किया है, मतलब हाथ से नहीं करी है ये मैंने। ये जो अभी हाईलाइट है, ये सारी चीजें एक्सेल में ही कैलकुलेट होके फाइनली यहाँ आई है। ओके। और ये जो नीचे वाला है ये डायरेक्टली एक्सेल से किया है, आई हैव डन नथिंग। तो ये वेरिएंस जो आ रहा है ये मुझे रीजन समझ में नहीं आ रहा है। आई हैव चेक्ड, अगर आप कहें तो मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूं, मैंने कैसे कैलकुलेट किया, अगर मिस्टेक है तो वी कैन फाइंड आउट। Okay, I got this problem. So okay, so this is one problem, that your manual calculation and Excel calculation. So this is only, and then how much is the difference coming? ये सर ऊपर दोनों है, ऊपर नीचे है दोनों। ये जो ये वाला येलो वाला है दिस मैनुअली कैलकुलेटेड, और जो भी हाईलाइटेड है दिस वन इज एक्सेल वाला। तो जैसे फर्स्ट वाले आइटम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, 0.7 का है, सेकंड में बहुत ज्यादा है, सेकंड में ज्यादा है, थर्ड में भी डिफरेंस काफी है, दो सिग्निफिकेंट तो आया है लेकिन डिफरेंस है, फोर्थ में कोई खास डिफरेंस नहीं है, फिफ्थ में थोड़ा सा है, सिक्स्थ में भी है थोड़ा, सेवेंथ में काफी हो गया फिर थोड़ा। क्योंकि जो ऊपर येलो में कैलकुलेट किया वो तो सिंपली कॉपी पेस्टेड है, उसमें मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं। पहला वाला जो है अगर सही है तो बाकी सारे वैसे ही हैं। हाँ, वो तो एक
पे जो आपने फॉर्मूला लगाया हुआ वही हाँ, copy paste I करके just I just dragged it down. वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो एक ही बार में जो कुछ हुआ वो सब पे आ जाएगा। तो इसीलिए जो फर्स्ट वाला क्लोज है, तो बाकी इतने क्लोज नहीं, वो रीजन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम्म, Okay. So at least this is a problem which is to be answered. Okay, fine. So this is something. Let me also rerun at my end, and will certainly see that. अगर आप चाहें तो सर ये एक्सेल शीट मैंने आपको you can just share in the chat window. हाँ ठीक है सर। So I will download it at my end because I need to rerun that data at my end and will come with the solution for this. Quite possible I made a mistake. I can, but I don't know what mistake I'm making. Yeah. So you just send this Excel in the chat window. ठीक सर, I'll do that सर। मैं स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ। हाँ, इसको चैट विंडो में आप भेज दें। Because I want to cover problems of almost all the groups quickly. So this is the issue related to one group. Who is sharing the screen right now? सर डॉक्टर गीतिका नागर। हाँ मैम, please tell what is your problem. चैट बॉक्स में आई एम अनेबल टू शेयर, कैन यू प्लीज गाइड मी कैसे होगा? फाइल आई एम गोइंग टू फाइल, तो उसमें ऑप्शंस जो आ रहे हैं वो ड्रॉप बॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, बॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट। In this, so if you see in this, उसमें सर उसमें जो हमारा ग्रुप है उसमें आप हैं क्या सर? I am in your that WhatsApp group also. ठीक है, उसमें डाल देता हूँ सर। उसमें डाल दीजिए। Yes, I am there in that WhatsApp group. Ma'am, you are mute, so please unmute yourself so that you can speak also simultaneously at the same time when you are sharing the screen. Dr. Nagar. Dr. Nagar. हेलो गीतिका मैम, सुन पा रही हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हो गया, अनम्यूट कर दिया मैंने अपने आप को। सर ये पहला वाला जो कॉलम है, ए कॉलम है, ये तो होल ऑफ द टेस्ट का है, होल ऑफ द टेस्ट का है। ये टी टेस्ट निकाला है तो ये तो सिग्निफिकेंट आ गया। इसका मतलब हमारा टेस्ट जो है के जो आइटम्स हैं वो लेने योग्य हैं। ये आइटम वाइज है जी जी। तो ये वाला जो जैसे इसकी वैल्यूज़ 4.25 है या 8.88 है, जिन भी आइटम्स की हमारी ग्रेटर देन 2.58 तो हम ले सकते हैं वो आइटम, जब हमने टेस्ट डेवलप किया है। सर अब इसके नॉर्म्स कैसे डेवलप किए जाएं ये बताइए सर, ये क्लैरिटी नहीं हो रही है। सुबह भी परसेंटाइल नॉर्म के ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ था, लेकिन कैसे डेवलप करें हम? अब ये यहाँ तक हमारा काम हो गया, हमने ये आइटम एनालिसिस कर लिया, जितने भी हैं हमारे पास 25 आइटम है, अभी और निकालने हैं मेरे को, ये वाले हैं अभी पूरा ये यहाँ तक निकाले हैं, इसके बाद के मुझे निकालने हैं, अभी मैं करूँगी इसको। तो जिनकी हमारी टी वैल्यूज़ हमारी ग्रेटर आ रही है तो वो तो हम आइटम ले ही सकते हैं। सर ये इसके नॉर्म्स के बारे में कुछ बताइए।
कैसे डेवलप करें नॉर्म? ये आपने एक्चुअली क्या किया मैडम, नॉर्म को मैं बताता हूँ, आप इसको ना ये बार बार सब चीजें लिख रहे हैं ना, तो जैसे जी। आप फॉर्मूला ड्रैग नहीं कर पा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। अदरवाइज आपको ये सब चीजें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसके जी। पहले कॉलम में सब लिख दीजिए जी और जी 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 इसको जो फॉर्मूले को ड्रैग करके आपकी सारी वैल्यूज सब एक साथ आ जाएंगी, तो जी ना जी आपका जी ये जी जो टाइम लग रहा है लिखने में, दैट जी विल। जी 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 जी, ये मैंने सब अपने हाथ से लिखा है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, आपको आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाता होगा और आपको हर बार पूरा जी जी कैलकुलेशन करना जी, पड़ता होगा, पूरा तो कैलकुलेशन करके लिखती हूँ आप मैं। रिक्वेस्ट वो कीजिए, आप अपना जो कूलर बंद कर दें, grammatically- सबकी आवाज काफी आ रही है। ठीक है मैम। ओके सर, ओके सर, कोई पूरा सेटअप के साथ मुझे उठना पड़ेगा सर। कोई नहीं, आपकी आवाज आ रही है, मुझको आ रही है क्लियर। सर हाँ आपकी हाँ आवाज आ रही है। हाँ हाँ थोड़ा सा हाँ हमें कोई नहीं। हाँ मेरा आपको पहला एडवाइस तो यही है कि आप ना मैम इसको जो है एक कॉलम में वो लिख दें सबको, जी सारी चीजों को पहले जो है ना ये, तो उससे जी आपको जैसे जी अभी सिंह साहब हाँ बता रहे थे, तो वो फिर एक बार फॉर्मूला आपने जी पहले कॉलम में लगाया और फिर उसको ड्रैग कर दिया पूरी रो में, जी तो वो फिर पूरे के पूरे जी जी आपके जी, एक साथ वही वैल्यू आ जाएंगे। आपका बार बार जो अभी आपको जो एफर्ट लगाना पड़ रहा है वो आपका सबका अलग अलग करने की जरूरत हाँ नहीं पड़ नहीं रही है। हाँ 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 ऐसा है ना, जब हम हाँ, चीजों अभी मेरे कुछ रह भी गए हैं इस हाँ, चक्कर में, इसलिए मैं रह गए, अलग से तो आपका निकालूंगी तब इफेक्टिव हो करूँगी। जाता, इसलिए रह गए हाँ कि आपको बार बार करना पड़ रहा है वो सब काम। जी 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 तो आप अगर वो जी एक बार लगाते तो एक ही जी बार जी 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 जाता। तो एक तो ये है, क्योंकि जब हम चीजें ऑटोमेट कर रहे सर, हैं। इसके नॉर्म्स के बारे में कुछ बताएंगे आप? अब मैं इसके नॉर्म्स जी, के बारे में भी आपको बताऊंगा, तो ये एक आपका सवाल है कि क्योंकि जब तक इसके नॉर्म्स नहीं बनेंगे तब तक, मान लीजिए आइटम भी हमने चूज़ कर लिया, स्केल भी डेवलप हो गया, इसका नॉर्म्स नहीं बनेंगे तब तक ये तो रिलायबल और वैलिड होगा ही नहीं। ठीक है बिल्कुल। रिलायबिलिटी तो हम टेस्ट रीटेस्ट से, तो फिर उसके बाद हम कुछ दिनों के बाद इसको टेस्ट करके तो चेक कर सकते हैं, हाँ वैलिडिटी एक्सपर्ट के द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा है कि हमें ये देखना पड़ता है कि हम कोई इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना चाहते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो केवल हमारी पर्टिकुलर रिसर्च के लिए डेवलप हो रहा है या हम इसको कितने लंबे समय तक के लिए डेवलप करना चाहते हैं। उसके ओके सर। वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम चीज़ों को यूज करते हैं, कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी तेजी से चेंज होती चली जाती हैं। आप आज कोई स्किल बना रहे हैं और वो 5 साल बाद 10 साल के बाद उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि इतना ज्यादा एनवायरमेंटल चेंजेस हो चुके होते हैं, सोसाइटल चेंजेस हो चुके होते हैं कि वो स्केल हमेशा के लिए आपका काम नहीं कर सकता है। और कुछ स्केल ऐसे होते हैं जो जी मतलब काफी लंबे समय तक के लिए यूज किए जा सकते हैं। जैसे मैं बता रहा था ओके सर। कि बहुत सारे अब जैसे सपोज कीजिए हम चूंकि मैनेजमेंट के हैं, तो एक सर्विस क्वालिटी मेजरमेंट का एक स्किल है, सर्विक 12 के नाम से जाना जाता है। ये सर साइबर क्राइम अवेयरनेस से संबंधित है ये, उसके लिए हमने क्वेश्चंस बनाए थे, तो ये फिर समय के साथ साथ बदल भी जाएंगे। हाँ मैं तो आपको ये बता रहा हूँ। हाँ, जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी उसके साथ साथ बदल भी जाएंगे। हाँ हाँ, तो वो ठीक है। उसमें देखिए दो बातें हैं। अब जैसे जो सर्विक 12 का स्केल है सर्विस क्वालिटी का, तो सर्विस क्वालिटी स्केल में केवल 5 डायमेंशंस है, और जब वो ओके सर। परशुरामन और जेथमल ने उसको डेवलप किया था, तब उन्होंने उसको बहुत कम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू डेवलप किया था। उसमें ज़्यादा जो है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद ओके सर। सर्विस क्वालिटी से रिलेटेड रिसर्च होती है आज की तारीख में, और चूंकि आप सब ये जानते ही ओके। होंगे कि हमारे कंट्री में सर्विसेज का जो मार्केट है वो प्रोडक्ट के मार्केट से कई गुना बड़ा है। हमारा जो जीडीपी है कंट्री का, उसका लगभग 55 to 56% सर्विसेज से आता है, और 20% से भी कम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से आता है। तो सर्विसेज के बारे में इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, और सर्विस क्वालिटी की बात अब हर सेक्टर में होती है, चाहे आप हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग की बात करें, चाहे आप एजुकेशन की बात करें, चाहे आप इंश्योरेंस की बात करें, चाहे आप टूरिज्म की बात करें, हर एरिया में सर्विस की बात होती है। और हर एरिया में जब भी आप सर्विस क्वालिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले वो सर्विक 12 से ही बात कहानी शुरू होती है। उसके बाद
जो भी कोई रिसर्चर होगा, चाहे वो डॉक्टर दीपिका हो, चाहे वो डॉक्टर सुनीता हो, चाहे वो प्रोफेसर रश्मि हो, चाहे वो डॉक्टर राजेश हो, तो फिर कहेंगे कि नहीं साहब इसमें चूंकि हमें कुछ और एडिशन करना है, क्योंकि ये हम एक स्पेसिफिक चीज के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें प्लस माइनस करने की बात शुरू होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो जो हमेशा सार्वभौमिक रहती हैं, उनका हर समय उपयोग रहता है, लेकिन ऐसी होती है तो थोड़े थोड़े समय के लिए जाती है। जब हम PhD के लेवल पर बात करते हैं तो PhD के लेवल पर जो स्किल डेवलप होते हैं, मेरा ऐसा मानना है वो बहुत हमारा एक बड़ा शॉर्ट टर्म पर्पज होता है PhD अचीव करना, तो इसलिए उनकी जो लॉन्गेविटी है वो उतना इम्पोर्टेंट इशू नहीं है। उसका इशू केवल इतना है कि वो साइंटिफिकली टेक्निकली सही हो, जो भी हम काम कर रहे हैं उतना इम्पोर्टेंस है उस चीज़ का। उसकी लॉन्गेविटी के लिए हम उतने ज़्यादा कंसिडरेशन में नहीं रखते हैं। और जो अगर ऐसे मैं फ्रीलांसर रिसर्चर की बात करूँ, जब मैं एक प्रोफेशन में आ गया हूँ और उसके बाद में जब रिसर्च की बात करता हूँ, तब मुझे ऐसे स्किल्स डेवलप करने चाहिए या ऐसे मेरा शौक होना चाहिए कि जो मेरा जो एक नाम है वो मेरी फील्ड में इस्टेब्लिश कर सके। जस्ट मैं अगर पॉजिटिव साइकोलॉजी में काम कर रहा हूँ, मैंने कुछ एक ऐसे स्किल डेवलप किए, हाउ टू मेजर द माइंडफुलनेस ऑफ ए पर्सन, हाउ टू, आज की तारीख में माइंडफुलनेस पे बहुत लोग काम कर रहे हैं और किसी पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी हो रहा है बहुत। पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक पार्ट है, मतलब लेकिन क्योंकि मैं साइकोलॉजी का विद्यार्थी नहीं हूँ तो मैं आपकी टर्म्स नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं उनको कहने से थोड़ा बच रहा हूँ कि पता लगा आप लोगों ने मुझे कहीं गलत जगह पकड़ लिया तो मेरा और काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैं तो अपने क्षेत्र की टर्म्स यूज करूँगा जो मैनेजमेंट में हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम उसी हिसाब से अपने इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप करने में मतलब मेहनत करते हैं कि हमारा उसका पर्पस क्या है, लॉन्ग टर्म पर्पस है या शॉर्ट टर्म पर्पस है। और जहाँ तक अब रही अगली आपके स्पेसिफिक सवाल की बात कि आपको अब इनके नॉर्म्स डेवलप करने हैं जो आपके हिसाब से जिन को आपने सिग्निफिकेंट पाया है उनके लिए आपको नॉर्म्स डेवलप करने हैं आगे। यस 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 सर, है ना, ये है। तो अभी आपने जो फिलहाल आपका जो ये था मेजरमेंट, वो किस बेसिस पे किया था आपने? हमारा मेजरमेंट था साइबर क्राइम अवेयरनेस स्केल। साइबर क्राइम अवेयरनेस स्केल। अच्छा, साइबर क्राइम के अवेयरनेस के बारे में आप जानना चाहते हैं? यस 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 यस, मतलब और ये टूल भी जो है वो हमने 13 से 18 तक के एज ग्रुप के लिए किया था। ओके ओके ओके। एज ग्रुप हम यही लेके चले थे क्योंकि क्वेश्चन हमारा फर्स्ट और सेकेंड लेवल का था। मैम ने हमें बताया था कि पहले आप प्राइमरी लेवल से शुरू करें क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तो हाई होता है, तो जो मतलब एज जिनकी जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे मैनेजमेंट के स्टूडेंट है तो वो तो हाई टेक्नोलॉजी जानेगा, तो उनकी अगर हमको अवेयरनेस चेक करनी है साइबर क्राइम के बारे में तो उनका तो हाई लेवल होगा, वो तो टेक्नोलॉजी टर्न में जाएंगे ना हर चीज़ को लेके। तो ये है मेरा साइड से नहीं हो रहा ये। अच्छा नीचे से करती हूँ मैं। सर ये टोटल ऑफ द स्कोर जो है, मैं ये कह रही हूँ कि क्या हमें टोटल ऑफ द स्कोर में जाना पड़ेगा इसका नॉर्म डेवलप करने के लिए? ये देखिए, ये पूरा टोटल ऑफ द स्कोर है हमारा, जितने लोगों के ऊपर हमने किया है 30 के ऊपर। हेलो सर, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही, आपकी आवाज़ आ रही है मैडम। हाँ, ये जो टोटल स्कोर है ये जो आ रहा है। आपके पास पंखा वगैरह चल रहा है? हाँ सर, कूलर चल रहा है मेरा, तभी तो मैं कह रही थी। ये टोटल स्कोर है हमारा फर्स्ट वाली लाइन में। तो क्या हमें इस स्कोर में से नॉर्म डेवलप करने पड़ेंगे? मतलब एक प्राइमरी बात हो रही है। आपके रिस्पोंडेंट्स कौन थे मैडम? ये रिस्पोंडेंट्स हम ही लोग थे सारे जो यहाँ पे वर्कशॉप कर रहे हैं। हमने ये बोला था कि आप लोग अभी प्राइमरी तौर पे स्केल कैसे डेवलप करना है ये सीखिए। अच्छा। अब वो नॉर्म वाली बात आ गई ना, तो सर नॉर्म वाली बात हमने आपसे पूछ ली। अभी सर 1 सेकंड में कूलर बंद करती हूँ।
हाँ हेलो सर, हेलो। जी 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 जी, तो बस वो नॉर्म वाली बात आ गई ना, तो फिर हमने सोचा कि आपसे नॉर्म के बारे में डिस्कशन कर लिया जाए। बिल्कुल ठीक। चलिए तो ये है, ये टोटल हाँ ये आइटम स्कोर्स है, ये हमारा टोटल स्कोर है। फर्स्ट से जब हम चले 53 हमारा सबसे लीएस्ट है और 123 सबसे हाई है। तो क्या हमें जो टोटल स्कोर में जाना पड़ेगा? ये देखिए, परसेंटाइल डेवलप करने के लिए परसेंटाइल डेवलप करने के लिए हमें जो है हमें अ, किस में जाना पड़ेगा सर? सर अभी सुबह बता रहे थे कि आपको हाँ जी सर ये नॉर्म डेवलप करना है, इट्स ए सब्जेक्टिव थिंग, आई थिंक इट्स नॉट कैनॉट बी ऑब्जेक्टिव टोटली। इसका मतलब एक्चुअली नॉर्म्स का मतलब केवल ये होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो रिस्पोंडेंट है, उसकी रिलेटिव स्टैंडिंग कहाँ है, एक तरीके से आपके पूरे उसमें मतलब जो जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं, क्योंकि जो एब्सोल्यूट स्कोर होता है कई बार सही पिक्चर क्रिएट देता है आपको कि वो कहाँ उसकी स्टैंडिंग है आपके सब्जेक्ट की। तो उसके लिए हमने ये जो है नॉर्म्स का कॉन्सेप्ट होता है कि उसकी जो रिलेटिव स्टैंडिंग है ऑफ एन सब्जेक्ट, तो उसके लिए जो हमारे मतलब क्योंकि अब ये इस पे ये डिपेंड ये करता है, मैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ अभी आपके सवाल का जवाब देने में, कि अगर आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस थे, जो स्टेटमेंट्स थे, वो अगर एक ही तरीके के मतलब रिस्पॉन्सेज ले रहे हैं तो मैं आपका आंसर अभी दे सकता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो एक तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, अगर आपने सबको 1 to 5 अगर आपने स्केल यूज किया है, या मुझे नहीं पता आपने किस तरीके से डेटा लिया है, 1 to 7 लिया, 1 to 10 लिया, तो और उनमें जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कई बार हम लोग इस तरीके के स्टेटमेंट्स यूज करते हैं तो कि आपके कुछ क्वेश्चंस को चेक करने के लिए कि हाउ सीरियस द रिस्पोंडेंट वाज, और उसकी वजह से आप अगर आपको लगता है कि उसने दो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस का सिमिलर टाइप ऑफ जवाब दे दिया है, तो आपको लगता है कि उसने ध्यान से क्वेश्चन ही नहीं पढ़े हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आपको एलिमिनेट भी करना पड़ता है कई बार। तो उसके बाद ही मैं आपको ये कह पाऊंगा कि फिर आप नॉर्म्स डेवलप कर सकते हैं कि चाहे आप वो सेंटाइल्स में करें, चाहे आप क्वार्टाइल्स में करें, वो आपके ऊपर है कि आप अपने जो डेटा को कितने तरीके से कैटेगराइज करना चाहते हैं। तो परसेंटेज एक तरीका होता है सबसे सिंपल जो है, और परसेंटेज के बाद हम क्वार्टाइल्स भी यूज करते हैं और सेंटाइल्स भी यूज करते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्म। लेकिन उससे पहले जो है ये बहुत जरूरी है कि आपने जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स क्या सब एक ही फ्लो में आने चाहिए, या जैसे मान लीजिए कि आपको सफाई पसंद है, तो आपने कहा कि आप इसको दीजिए कि 1 to 5, फिर आपने 15 क्वेश्चन के बाद 16वां क्वेश्चन फिर एक दे दिया, क्या आपको गंदगी पसंद है, तो पता लगा उसने उसको भी दे दिया कि हाँ भाई बहुत पसंद है, और सफाई को भी कह दिया बहुत पसंद है, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये तो सब्जेक्ट जो है वो नॉन सीरियस टाइप का है कि ये दोनों चीजों को पसंद कर रहा है, गंदगी को भी पसंद कर रहा है और सफाई को भी पसंद कर रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? एंड वी डू these types of statement framing in our instruments so that those statements will not be used for further analysis, just to check the seriousness of the respondents. हाँ सर, वो लाइट डिटेक्टर स्केल इसमें हम लोगों ने किसी ने नहीं यूज किया है। नहीं किया है, करना चाहिए कायदे से। और जब जैसे आपका तो जो डेटा था उसमें तो कितने मेरे ख्याल से 7 या 8 ही आपने स्टेटमेंट्स रखे हैं। नहीं सर, वो एक डायमेंशन लेके था ना इनका,
हाँ, तो हमने एक ही ऐसा डायमेंशन वाला रखा नहीं था, हाँ, नहीं, हमने होल ऑफ द टेस्ट का निकाल लिया। बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर रहे वक्त है ना, मान लीजिए अब आपने अगर एक ही डायमेंशन है और उस एक डायमेंशन में आपने 8 सवाल पूछे हैं, आप जी और आप लोग तो मुझसे ज्यादा समझते होंगे, आप सब जी जी साइकोलॉजी जी के स्टूडेंट्स हैं, कि हम तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दी मॉडर्न टाइम। इफ यू कीप ए इंस्ट्रूमेंट which is very lengthy, probably you will not get good response. You need to see that you should use minimum number of statements for one particular dimension. For an example, if I take the case of Mr. Singh, for one dimension, if he is using 8 statements, and let's say there are 5 dimensions, so 8 in one. Similarly, in one case it can be 7, it can be 6, or maybe 8 in another. So roughly 35 to 40 statements will be there, and that is slightly on a higher side, what I'm trying to say, because it will increase the time which you are expecting from the respondent to respond your questions. That is one thing. And the second is, you will not be having the sufficient sample, because rule of thumb that says कि जितने आपके statements हैं उसका लगभग 10 times you should have your responses. So if you have 35-40 statements in your instruments, so that means 35 into 40 into 10, 350 का आपको लगभग वो सैंपल भी लेना पड़ेगा. So that also increases your burden. क्या सर एक बार और बताइए प्लीज, रिपीट दिस सैंपल हमको कैसे। आपने जो बात बोली सर, आई अंडरस्टैंड दैट, उसमें 8 हम इनिशियली लेके चल रहे हैं, तो हमें पहले से नहीं पता कि कितने सेलेक्ट होंगे, इसमें से कुछ रिजेक्ट भी होंगे, तो हमें बताया गया था 1:3 का रेशियो रहता है नॉर्मली। तो अगर 8 लेके चल रहे हैं तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि 4-5 ही सिलेक्ट होंगे। 8 लेके चल रहे हैं तो 4-5 भी मैं कह रहा हूँ ज्यादा है ना फाइनली। क्यों सर, अगर 5 डायमेंशन है तो 20 क्वेश्चन हुए, इट इज गुड इनफ। नहीं, लेकिन सबसे पहले आपको 20 क्वेश्चन नहीं, आपको जो प्राइमरी वो चाहिए कि आप जब उसको रिलायबिलिटी और वैलिडिटी लेकर निकाल के जब उसको मास लेवल पर इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तब तो बात ठीक हो गया, लेकिन आपको उससे पहले भी तो ज्यादा वो चाहिए, क्योंकि आप देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हर स्टेटमेंट के पीछे आपके जो भी उस डायमेंशन में आपने आइटम्स लिए हैं वो सब उतनी क्रिटिकल बैकिंग भी तो चाहिए और हर चीज के लिए। हाँ, थ्योरेटिकल बैकिंग है सर। हाँ, तो वो सब काम हमारा काफी बढ़ता चला जाता है, और उस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर ए स्मार्ट रिसर्चर यू शुड थिंक ऑफ, क्योंकि यूजी इतनी ज्यादा चीजों को हम एडअप कर सकते हैं हमेशा कि उसका स्कोप आपको लगेगा कि ये भी रिलेवेंट है, ये भी रिलेवेंट है, ये भी रिलेवेंट है, और इसको भी यूज करना चाहिए, इसको भी डालना चाहिए। एक रिसर्च में सारी चीजों को समाहित कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा है, इसीलिए फ्यूचर स्कोप ऑफ रिसर्च हमेशा बना रहता है। हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर स्कोप ऑफ रिसर्च में कहते हैं कि भाई हमने ये रिसर्च जो है वो उत्तराखंड में की है तो इसलिए इसको यूपी में भी करके देखना चाहिए, या हम लोग कहेंगे कि हमने इंडिया में की है तो इस तरीके की रिसर्च का जो फ्यूचर स्कोप है वो एक हम इंटर कॉन्टिनेंटल या मतलब 2 देशों के बीच में कंपैरिजन करके देख लें। हमने ये रिसर्च जो है वो लड़कों पे की है तो इसको लड़कियों पर भी करके देख लें। हमने ये रिसर्च बैंकिंग प्रोफेशनल पे की है तो हम ये रिसर्च जो है दूसरे प्रोफेशन के लोगों पर भी करके देखें। हम लोग जो जनरली अपनी रिसर्च में फ्यूचर स्कोप लिखते हैं वो इस तरीके का लिखते हैं, जबकि हमें फ्यूचर स्कोप इस तरीके का देना चाहिए कि मैंने अपनी रिसर्च में यही डायमेंशंस को लिया और मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि ये सब डायमेंशंस और हो सकती हैं जिनको मैं टाइम और अपने स्कोप की वजह से नहीं टच कर पाया, जो कि फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए एक एजेंडा हो सकता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम अपनी रिसर्च में ये दिखाएं कि मुझे ये पता है कि मैंने वो चीज़ों को नहीं टच किया है और वो भी टच की जा सकती है इस तरीके की रिसर्च में, एंड दिस इज फॉर सम अदर रिसर्चर
फॉर माय, अगर मैं एक फैकल्टी मेंबर हूँ तो मुझे पता है कि मैं अपने एक स्टूडेंट से ये 4 चीजों पे काम करवा रहा हूँ उसी टॉपिक पर, और बची हुई 4 चीजों पर दूसरे स्टूडेंट से काम करवा रहा हूँ, और बची हुई और 4 चीजों पर किसी तीसरे स्टूडेंट से। तो इसी तरीके से जो हम कहते हैं ना कि आप लोगों ने अगर पेपर्स पब्लिश करते होंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि कभी एक जर्नल में पेपर पब्लिश कर लिया, फिर कोई दूसरे जर्नल में कर लिया, फिर किसी तीसरे जर्नल में कर लिया। वी डू विंडो शॉपिंग फॉर पब्लिकेशन, जबकि होना ये चाहिए कि वी शुड कंटिन्यूअसली पब्लिश इन लिमिटेड नंबर ऑफ जर्नल्स, सो दैट हमारा एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कितने इन डेप्थ हम जा रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब आप कंटिन्यूअसली एक ही जर्नल में पब्लिश कर रहे हैं तो आपकी डेप्थ ऑफ द टॉपिक दैट विल बी क्लैरिफाइड। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम डेप्थ की बजाय अपने आप को विड्थ में फैला देते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो स्प्रेड है वो वाइडर होने से इट बिकम्स वेरी थिन, क्योंकि हमारा मतलब कहीं पर भी इन डेप्थ काम नहीं हो पाता। अच्छा, हमारे पास अब समय थोड़ा सा कम है, तो ये जो नॉर्म्स वाला सवाल है मैडम, इसका जवाब अभी मैंने पार्शली दे दिया आपको कि हम लोग नॉर्म्स जो है वो रिलेटिव टर्म्स में डिस्कस करते हैं, एंड इट इज अप टू यू दैट वेदर यू गो फॉर परसेंटेज or you go for quartiles, you go for centiles, it is up to you. The more popular way of is quartile, where you have 4 quartiles of your overall respondents, and sir. quartile 2, quartile 3, and then it becomes very easy to compare. whole of the group का, ज़्यादा grouping भी whole of the group, क्योंकि centiles में 10 ग्रुप बन जाएंगे और क्वार्टाइल में 4 ही ग्रुप बनेंगे। तो क्वार्टाइल आई फील good enough way of them into a relative category. अच्छा, ओके सर। क्योंकि जो मैं इसको उस तरीके से रिलेट कर हाँ, Q1, Q2, Q3 और Q4। हाँ, इस तरीके से Q1, Q2, Q3 आप जानती है। Q1 पब्लिश आपके जितने भी अमेरिकन यस एक क्वार्टाइल डेविएशन जानते हैं। हैं? क्या कह रहे हैं मैम? सॉरी। नहीं सर, आप बोलिए। मैं आपकी बात फॉलो कर रही हूँ सर। एसोसिएशन के जो जर्नल्स हैं वो ज्यादातर सब Q1 कैटेगरी जर्नल्स हैं। अच्छा, तो हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स आई अभी तक, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, बाकी ग्रुप्स का क्या? हाँ सर, दो ग्रुप की तो प्रॉब्लम आ गई है, और 4 ग्रुप्स रह गए हैं अभी। हाँ, तो वो भी जल्दी करते हैं बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ। Next group can share. Hello. Yes, Dr. Kagasa. हाँ, मैम आ रही है आपकी आवाज। Sir, I want to know that we have created 5 dimensions in our questionnaire, but when I did factor analysis in SPSS, then factor analysis divided all the items into 2 factors. Myself is Kakasha, sir. आवाज नहीं आ रही मैडम, थोड़ा माइक अपने पास ले लीजिए, close to your mouth. Sir, now you can you listen me, sir? Am I audible? कुछ आ तो आवाज, but I'm not, it's not very clear. जैसे अभी इनकी आ रही थी, मैडम की या संजय जी की आ रही थी, वो that was very clear. Sir, I created a questionnaire of 25 items. And all were divided into 5 dimensions. Okay, sir? Okay. 5 domains. Okay, but when I applied factor analysis in SPSS, all the dimensions were deducted into 2 dimensions. So there are only 2 factors in my questionnaire. So in such case, after final version of our questionnaire, should we make only 2 domains of that questionnaire, or we should go some other test? What should I do? Okay, so this is more a generic question that you have developed 5 dimensions, and SPSS analysis is resulting them into only putting them into 2 category only. Yes, sir. Yeah. So this question has a very simple answer. The answer of this question is that what I was trying to explain earlier, and Sanjay ji understood
शायद हमने उतना ज्यादा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग से उन 5 को अलग अलग नहीं डिवाइड किया, और वो सब लगभग मिलती जुलती सी बातें होंगी जो आपका रिस्पोंडेंट उस वजह से उसने उनको एक जैसे तरीके से ही समझा, एंड देयरफॉर यू आर नाउ गेटिंग दोस 5 reduced to 2 only, कि वो सारा का सारा 2 में ही खत्म हो रहा है आपका. It is only because of this particular reason. Otherwise, if you are very clear that what are you going to measure in 5 different dimensions, अगर वो पांचों बिल्कुल अलग अलग तरीके की चीजों को आपको मेजर करना है, तो it is very unlikely that it will be reduced to just 2. It is possible that 5 में से एक आध की फैक्टर लोडिंग सफिशिएंट नहीं है, एंड यू विल लाइक टू एलिमिनेट दैट, बट वो 5 अगर 2 में हो रहे हैं, तो माय सिंपल थिंग इज थ्योरेटिकल नॉलेज कि वो सब एक ही मिलती जुलती सी बात है, और रिस्पोंडेंट इसीलिए आपके लिए ये एक टाइप का एक आप जिसको कह सकते हैं ना कि वो टास्क दे दिया है आपको वापस, कि आप अपने उस इंस्ट्रूमेंट को रिवाइज करें कि वो आप वास्तव में जो 5 अलग अलग चीजें मेजर कर रहे हैं वो 5 अलग अलग है कि नहीं. कई बार क्या होता है कि वो जो फैक्टर एनालिसिस के हिसाब से दे आर ऑर्थोगोनल, दे आर नॉट ऑर्थोगोनल, दे आर ऑब्लिक, सो दैट्स व्हाई डायमेंशन रिड्यूस हो गई. Yeah, sir. I have maybe I will give this answer. Actually, जो कहकशा मैम बोल रहे हैं उस टेस्ट में हम लोग भी थे as a social. मैम थोड़ा जोर से. हेलो. हाँ, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ा मुझे बहुत थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है. ओके. सर, जब हमने कंस्ट्रक्ट किया था टेस्ट, तब मुझे भी ये लगा था जो 5 डोमेन्स हमने लिए हैं उसमें से जो 4 डोमेन्स है वो साइको सोशल के इसमें आते हैं, कैटेगरी के अंदर आते हैं. जैसे इमोशनल है, जो डोमेन को हमने 4 में रखा है वो साइको सोशल के अंडर आएगा, तो वो 2 डोमेन में ही आ रहा है उसका रिजल्ट. मे बी दिस इज द रीजन. ओके. सो वो कर सकते हैं. हाँ, वो उसमें मैंने बोला था मैम को, कहकशा मैम को, बट ये रीजन हो सकता है. हाँ, मतलब अब चूंकि मुझे ये पता नहीं कि वो कंटेक्स्ट में वो आपने इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया उसके क्या डायमेंशंस थे, सो दैट आई एम नॉट अवेयर. तो मैं इसलिए वो आपने जैसा कहा कि वो उसी डोमेन में आ रहे हैं, तो मतलब चूंकि वो रिस्पोंडेंट उसी तरीके से उसने उसको समझा होगा और ऐसे ही वो आंसर्स आए होंगे. तो मेरा देखिए ऐसा है कि टूल्स का उपयोग बहुत मेरे ख्याल से आसान है. उपयोग बहुत आसान है. टूल्स तो एक बिल्कुल मैकेनिकल एक्टिविटी है, जो आपने इनपुट किया वो आउटपुट आ जाएगा, उसको समझने में कोई बहुत ज्यादा मुश्किल भी काम नहीं है. लेकिन जो ज्यादा मुश्किल काम है वो उसकी जो थ्योरेटिकल बैकिंग है. और हम लोग इस बात में कहने में मुझे कोई वो नहीं है कि इंडिया में जितने भी हम लोग हैं ना, हमारा ज्यादा ओरिएंटेशन मैथमेटिक्स की तरफ हो जाता है बजाय थ्योरी को समझने के, और उस वजह से हमारी जो मतलब आउटपुट है उसका उतना प्रैक्टिकल वो नहीं हो पाता, क्योंकि हम थ्योरी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते कि हम ना तो थ्योरी को समझ के इंस्ट्रूमेंट बनाया और फिर हमें थ्योरी में क्या कंट्रीब्यूट करना है, वो चीज हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है. सो दैट इज द आंसर राइट नाउ फॉर योर क्वेश्चन, व्हिच इज Professor Preeti ji is also already suggesting to you that it is. Sir, again I have one query or doubt you can say. जैसे हमने जो adolescent पे बनाया, Dr. Kekasha is with me in my group. Together we made that scale for adolescent 13 to 18 age group, right? And the subject is social media addiction and dependency scale. So sir, हमने ग्रुप के अंदर ही उसको रिस्पॉन्स के लिए भेजे थे. सो एज ग्रुप इज दिस वन, ऑल पार्टिसिपेंट, एंड द स्केल इज मेड फॉर adolescent group. The question what we included in that scale is for teenagers. So is there any difference? ये डोमेन्स का तो मुझे पहले दिन लग भी रहा था कि उसको साइको सोशल के इसमें डाल के सेकंड वाला हेल्थ फिजिकल इसमें डालना था. ये भी what is the question ma'am? रिस्पोंडेंट का वो फर्क पड़ता है ना, जो रिस्पॉन्स आते हैं, जो एज ग्रुप, जिस एज ग्रुप के लिए हमने वो स्केल बनाया है, दैट वन इज द टीनेजर. जी.
एंड जो रिस्पांस हमें मिले हैं वो सिर्फ 60 थे और वो सारे एज ग्रुप हमारे थे, मतलब हाँ, मतलब उससे ऊपर वाले लोग थे, हाँ 30 अबव से ऊपर 30 वाले लोग थे। या जी 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 जी। हाँ, उसका भी बिल्कुल फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आप का जो फिर वही बात आ गई कि जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है उसमें जो साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग आप लोगों की हो चुकी है और जो अभी बच्चा है उसकी जो साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है उसमें काफी डिफरेंस होता है। तो द वे यू आर गिविंग द रिस्पांस एंड द वे ए टीनेजर विल गिव द रिस्पांस, दैट विल मतलब हो सकता है कि टीनेजर विल बी मोर फ्रैंक इन गिविंग द रिस्पांस और आप लोग थोड़ा सा उसको पॉलिश्ड तरीके से देंगे रिस्पांसेस को विद लॉट ऑफ थिंकिंग बिहाइंड दैट। सो ऑब्वियसली आपका स्केल का जो सबसे पहला अभी हमारा मुद्दा था रिलायबिलिटी वैलिडिटी में, कि हम जिस ग्रुप के लिए जो मेजर करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा ना। फिर आपने उसको टेस्ट तो कर लिया किसी दूसरी चीज के लिए दूसरे जगह पर, मैं तो मेजर करना है कि भाई मतलब एक वेदर आम पका हुआ है कि नहीं है। मैं एक इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूं अपनी लैब में ये चेक करने के लिए कि आम पका हुआ है या नहीं है, इसको मैं दूर से दिखा दूं और टेस्ट हो जाए कि हाँ भाई आम पका हुआ नहीं है। और लेकिन मेरे घर के पास जो है सेब का बगीचा है, मैंने टेस्ट किया उसको सेब के बगीचे पर कि हाँ भाई सेब पक गया है कि नहीं पक गया है और वो टेस्ट कर लूं। तो अब सेब का टेस्ट किया हुआ चीज बाद में जब मैं आम के बगीचे में लेके जाऊंगा तो वो काम नहीं करेगा। आप कहेंगे यार मैंने तो फलों पर तो टेस्ट किया था, आम भी फल है और सेब भी फल है, लिए यहाँ तो ये जब सड़ गया तब भी नहीं पता लग रहा है कि पका ही नहीं पका और ये तो गिर गया, खराब हो गया सारा, मेरा ये इंस्ट्रूमेंट बेकार है। सो सेम थिंग इज मतलब जो है उस चीज को हम उस तरीके से देख सकते हैं। और दूसरे 2-3 मिनट रह गए हैं, डॉक्टर भट्ट साहब भी स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि इट्स ए सिग्नल कि हम थोड़ा वाइंड अप करें। अच्छा, एक काम हम ऐसा कर सकते हैं, because unfortunately I will also not like to drag it क्योंकि मेरी भी कुछ मीटिंग्स लाइन अप हैं। आप लोगों के साथ मैं भी चूंकि उस व्हाट्सएप ग्रुप पर हूं, तो आई विल रिक्वेस्ट ईच ग्रुप, 2-3 लोगों की बात तो हम सुन पाए लेकिन ऑल ग्रुप्स हैव नॉट कम विद देयर प्रॉब्लम्स। तो मैं समझता हूँ कि कुछ तो कॉमन प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो प्लीज राइट इन द चैट ऑफ दैट व्हाट्सएप ग्रुप so that I can take questions from there also, so that in tomorrow's session we will only like to solve the problems and problems कि ये सारे questions हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं by tonight and tomorrow we will be meeting at 11 o'clock. So I request that by tonight 12 o'clock आप लोग अगर यूरो देखते हैं तो यूरो के साथ साथ क्वेश्चंस भी पोस्ट कर दीजिए, और जिससे कि कल सुबह फिर हम लोग केवल उनके आंसर्स के बारे में बात करेंगे और मे बी इन दोज आंसर्स सम फर्दर क्वेश्चंस में आल्सो कम, तो उनको ऑन द स्पॉट हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। तो दिस इज व्हाट माय स्ट्रेटजी इज एंड नाउ ओवर टू डॉक्टर भट्ट। सर एक रिक्वेस्ट थी, अगर आपके पास में कोई पीडीएफ में बुक हो एसपीएसएस एंड फैक्टर एनालिसिस तो काइंडली हमसे शेयर मेरे पास है, काफी है, तो वो काइंडली ग्रुप में डाल दीजिएगा, विल डाउनलोड फ्रॉम देयर सर। आई कैन थैंक यू सर। so that's not a big issue. Thank you so much sir for your session, wonderful session। और जो कुछ टेक्निकल जो दिक्कत आ रही थी इनको एक्सेल से रिलेटेड है, एसपीएसएस से रिलेटेड, तो निश्चित ही इनको इस चीज को सीखने में मदद मिली होगी। और आपने व्हाट्सएप का चैट बॉक्स भी ओपन रखा है फर्दर डिस्कशन के लिए, और किसी की क्वेरी होगी तो वो आपसे वहां पर पूछ सकता है। और तो आज का सेशन सर की इजाजत से यहीं पे समाप्त करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही आसान भाषा में लोगों को अपनी बात को पहुंचाया और आई होप कि पार्टिसिपेंट को भी इससे काफी बेनिफिट मिला होगा। और कल के लिए आई होप कि जो क्योंकि कल हमारा लास्ट डे है, तो आपकी जो क्वेरीज और आपने कल प्रॉब्लम्स के लिए ही अपना सेशन को ओपन रखा है, तो आप लोग इस पे काम करें। सारे पार्टिसिपेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो आपकी पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको आप सर से डिस्कस करें, ताकि आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तैयार हो जाए टूल डेवलपमेंट को लेके। तो सभी का धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सभी पार्टिसिपेंट को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और कल आपसे फिर मिलते हैं। तो आज के कार्यक्रम की मैं यहाँ पे समापन की घोषणा करता हूँ। मैम आप कुछ कहना चाहती है? रश्मि मैम या सविता मैम? Thank you, Rajat sir. Thank you so much for such a nice, interesting and interactive session.
थैंक यू सो मच। आज बहुत सारा हमारे पार्टिसिपेंट सुबह भी डिस्कशन कर रहे थे, इनके कुछ क्वेरीज थी वो बहुत तो क्लियर हो पाई 3 ग्रुप की। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी once again I would like to thank you, or we'll meet tomorrow. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू राजेश जी, राजेश सर, थैंक यू।